हम जो बच्चे को पढ़ाते हैं, वास्तव में बच्चा को हम क्या बोलते हैं? भगवान का स्वरूप है। नवजात शिशु जो है उसको हम भगवान का स्वरूप मानते हैं कि नहीं? साक्षात। हाँ। तो भगवान को सिखाने की आवश्यकता है क्या? जब उसमें भगवत्ता कम हो जाती है, जब उसमें संसार का रंग चढ़ जाता है, तब उसको पढ़ाने की आवश्यकता है। जब तक उसमें भोलापन है, अबोधता है, उसको पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरी चर्चा कुछ साइंटिस्ट से चल रही है जो क्वांटम कॉन्शियसनेस, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम, उसमें क्वांटम का रिसर्च कर रहे हैं। हमें ज्यादा इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल लिविंग बीइंग का एक कॉन्शियसनेस है, एंड ईच ऑफ द लिविंग बीइंग्स इज, are they emitting a consciousness or are they attracting the conscious energy, the spiritual energy? We are just forms of energy only. So we are. No, but is a living being, is a living human being attracting energy or giving out energy? Attracting and giving out. If you are giving What it is out the to original someone nature? else, you What is the attract. original nature of attraction or repulsion? Attraction. Yes. And this is proved by the attraction energy is the center of the earth. Yeah. So the center of the earth that is there, it is a magnetic pull, magnetic energy. But in a living being, that magnetic energy, a part of it is certainly there. But what is the difference in a living being and the center of the earth? The living being has conscious energy also, which the center of the earth does not have. Right? So the consciousness, जिसको हम बोलते हैं, conscious energy is only in living beings. And each living being has that conscious energy. अभी जो ये बात आ रही है बहुत मार्मिक है, और आज के दिन हमारे जीवन के लिए, स्पेशली आज के दिन का जीवन के लिए बहुत जरूरी है समझना। हर लिविंग बीइंग में ये कॉन्शियस एनर्जी है। हर लिविंग बीइंग में। अब जो पेड़ पत्ते हैं उसमें जो ये कॉन्शियस एनर्जी है, ज्यादा है कि कम है कंपेयर टू ए ह्यूमन बीइंग? कम है। कम है। तो सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस किसमें है? ह्यूमन बीइंग्स में। ह्यूमन बीइंग में। Now leave the plants and this thing. Take all living beings, not the remove the plant category. So you have animals and humans. Okay. Now, which is the animal which has the least conscious energy? Human has the most conscious energy, which is in the other end of the spectrum. Those who don't have maybe brains, yeah, jo bhi, give me the name of the animal which is on the least, in the beginning of the spectrum. We are at the extreme end. We have the most evolved consciousness, which is the human being which has the least evolved consciousness. How will you judge the level of consciousness? Those who don't have the power of thinking. No. Consciousness, the level of consciousness is judged by the by which element you are conscious about. Out of the 5 elements, the 5 elements are in sequence. So you can be conscious about which element? Earth, water, fire, air, and ether. So the subtler, the stronger your consciousness, you will be aware of the subtlest element. So as the elements are going subtler, as you're being aware or conscious of the subtleness of the element, your consciousness is increasing. Am I correct? Are you with me? नहीं समझ में आ रहा भैया। माने जिसका consciousness gross है, dense है, he will be conscious of the earth element. So the grossest, or let's not talk of the elements, let's talk of the objects of the senses. We are not conscious of the element. Actually, we are conscious of the object of the senses, which are situated in this thing. So the earth element has all the 5 objects,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों है, परंतु अर्थ में केवल कौन सा एलिमेंट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है शब्द स्पर्श रूप रस गंध में? केवल स्मेल अर्थ में, बाकी उसमें स्मेल नहीं है, राइट? So the living being who is most conscious of the smell is his consciousness is the grossest, is the most dense. He cannot be, or rather he is not conscious of the object of the sense which is subtler than earth. He does not know taste, he knows smell. Which is that animal? Dogs. Yes. They are the most sensitive to smell. Right? Now, there is one individual consciousness and there is one collective consciousness. So the collective consciousness is the consciousness of the environment that your physical body is lying. So if two of us are together, your body consciousness and my body consciousness, depending on our spiritual level of this thing, will combine and attract a similar energy. Now, if there are identical consciousnesses together, they can be there at different places of the earth. But if there is identical or synchronized, they are synchronized or they are identical. So the energy that is being attracted in those points will be identical also. Yes. Cannot be an iota of difference, right? Yeah. Now, if I'm in the company, my consciousness is, my consciousness is the subtlest, is the most evolved. And the consciousness of the dog is the grossest. So, negative and positive, if I call it, and you merge them together and put them together in the closest of vicinities possible, your consciousness is negated and neutralized totally. So can you have any spiritual consciousness left with a dog? No. Your natural inherent consciousness that is there in your body, that you're capable of attracting, you are negating the moment you are there in the vicinity of a dog. And that is why our Shastras say कि कुत्ते को नहीं पालना चाहिए. सेवा करने से मना नहीं है. आज कुत्ते का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? स्मेल. और स्मेल से वो उस बॉडी का नेचर पकड़ लेता है. His consciousness is densest. So dense माने he knows the nature of earth just by smelling it. He knows the nature of the body just by smelling it. What is the feeling? Does he have a feeling of fear? Does he have a feeling of fearlessness, of love? What is the feeling in the body? The dog can sense just by the odor that the body is emitting. Yeah. Every body has a particular odor. What is that odor? That is your consciousness. You have captured that into the form of an aura, different colors. But it is your consciousness, your body consciousness which you are emitting. Got the point I'm making? Yeah. So that is why whatever जो बोलते हैं ना कि अपने शास्त्रों में जो भी बात लिखी हुई है वो बिल्कुल और बिल्कुल साइंटिफिक है और अपने हित के लिए है. अपने को समझ नहीं आ सकता, हो सकता है हम समझ नहीं पा रहे हैं. आज today if you have fear, if you're scared of the dog will attack you. It will take benefit of the fear. But if you're fearless, even if it wants to attack you, it might bark, but it will stay away and bark at you. It won't come near you. Yeah. So it knows your nature just by the smell. पर बैलेंस आउट कैसे हो जाता है वो नहीं समझ में आया कि एनर्जी एक बॉडी में बिल्कुल कॉन्शियस एनर्जी है और एक बॉडी में बिल्कुल ग्रॉस माने कॉन्शियस एनर्जी है ही नहीं, तो दोनों को एक साथ रखोगे तो क्या मिलेगा? बैलेंस आउट हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो वो कॉन्शियस एनर्जी नहीं रहेगा हम लोग में. Naturally, your energy also will become gross and you don't have your sense of smell is not developed. You cannot
gain the sense of smell of the dog. It is impossible for you. Your body is not built that way. Your body is not built that way. But अगर the long dog smell ले भी ले, यहाँ स्मेल लेने की बात नहीं हो रही. आज डॉग को जो स्मेल तो आता क्या है, डॉग अगर अपने लोग का कोई का स्मेल से समझ जाए कि इसका नेचर ये है, हम वो तो पॉइंट ही नहीं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. हम लोग उसका डॉग क्या समझ है उसका पॉइंट नहीं है. आज हमारे ऊपर उस कुत्ते का संग का क्या प्रभाव पड़ रहा है. हमारी जो शक्ति है, हमारे भीतर जो शक्ति है समझने की, अनुभव करने की, अध्यात्म या जो क्या बोलेंगे, आध्यात्मिक ही बोलेंगे, स्पिरिचुअल जो बोलेंगे, जो स्पिरिचुअल नॉलेज हम समझने की जो हमारे में क्षमता है, उसको हम खत्म कर दे रहे हैं. हमारी बुद्धि स्थूल हो जा रही है. इसको बोलते हैं हमारी बुद्धि उसमें स्थूल. क्यों हो जा रही है? ये साइंस बोल रहा है. क्योंकि डॉग पालने से, कुत्ते के विसिनिटी उसमें बगल में रहने से, कुत्ते के उसकी एनर्जी के कारण, उसके एनर्जी के कारण अपना एनर्जी कम हो जाएगा. और जितना ज्यादा टाइम आप उसके साथ रखेंगे, उसके साथ स्पेंड करेंगे, जितना ज्यादा पास चिपकेंगे उसके, उतना ज्यादा उसका इफेक्ट आपके ऊपर होगा. हम लोग यहाँ पे ये बात शुरू हुई माँ और बच्चे में. आज अभी बहुत अच्छा लाइन माइंड में आया. दी मदर इज द मास्टर ऑफ द चाइल्ड. दी मदर इज द मास्टर ऑफ द चाइल्ड. पहला गुरु जिसको हम कहते हैं. एंड द चाइल्ड इज द हेडमास्टर ऑफ द मदर. द चाइल्ड इज द हेडमास्टर ऑफ द मदर. आज माँ बच्चे को जितना सिखाती है, जन्म के बाद उससे बहुत ज्यादा बच्चे से सीखती है, बच्चा उसको सिखाता है. तो because the child is much more evolved than what the mother is. Yeah. And this applies the energy that the child is born with. Why is a newborn child called God or God-like? Because the newborn child, the energy that it is born with, it's human body, the spiritual energy that he has is at the highest level. And as soon as he is born, it is continuously diminishing based on his inherent nature, based on what he is attracting or imbibing from the earth. If my inherent nature, if I was a spiritual being, whatever level of spirituality I was at, and I have had to take birth again, I will take birth with that spiritual point remaining there. Right? Yeah. But that level was not complete. If I was required to reach 100%, I had reached 60%. So there was 40% which was still imperfect. So after my birth, the 60% I'm still gaining, but with the 60% I'm gaining the 40% also. So slow and steady it will diminish. Right? Yeah. And that I'm filling it with new knowledge that I'm getting. So in the beginning 5 years I don't have the intellect to distinguish. That comes later after 5 years. But the first 5 years it is natural. It is just coming. So that is why what do our scriptures say? बच्चा जब तक 5 साल का है तब माँ के अंदर में, या 8 साल 10 साल, उसके बाद जब वो अबोध नहीं रहता, जब उसको बोध हो जाता है, क्या चीज का बोध होता है? बच्चे को क्या बोध होता है? नाम का, माता पिता का बोध नहीं होता है. उसको बोध होता है अपने स्वभाव का. He starts understanding what I like and what I don't like. That is both. And that nobody else can tell him. He knows. He's automatically attracted to what he likes. He's automatically distracted from what he does not like. He's repulsed from what he does not like and he's attracted to what he likes. इसलिए जैसे भोजन की जो बात आती है,
सात्विक राजस तामस, हम लोग बोलते हैं ना कि ये भोजन सात्विक है, ये भोजन राजस है, ये भोजन तामस है। भोजन राजसिक सात्विक राजस तामस नहीं है। उसको सात्विक राजस तामस क्यों कहा गया है? सात्विक पुरुषों को ये भोजन पसंद है, राजस पुरुषों को ये भोजन पसंद है, तामस पुरुषों को ये भोजन पसंद है। तो अगर मतलब उसमें उन भोजनों में वो गुण है, इसलिए तो सात्विक को पसंद है वो। तो अब हम जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? प्याज तामसी है, तो आप जब खाएंगे तो वो तामसी नेचर आप में जा रहा है, उसको आपको पता चले या ना चले, अनुभव में आए या ना आए। The energy there is tamasic. How do we know it is tamasic, the energy of the onion? What is tamasic energy? Bad odor. प्याज और लहसुन में ओडर बहुत अच्छा लगता है कि खराब लगता है? हरदम खाते तो अच्छा लगता है, बट इट इज नॉट राइट। वो नहीं, खाना नहीं। अभी हम तो बिना खाए अगर तुम काटोगी तभी तुमको ओडर आ जाएगा। वो ओडर अच्छा लगता है क्या? और खाते खाते अच्छा क्यों लगने लग जाता है? कि तुमने अपना स्वभाव में वो तामसपना अपने डाल लिया। एंड दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग, एनी काइंड ऑफ फूड। हम ज्यादा मिर्ची, ज्यादा खट्टा, ज्यादा टेस्ट करके पाते हैं तो वह राजसी हो रहा है। और फल फूल सात्विक फलाहार ले रहे हैं तो वह सात्विक नेचर हो रहा है। लाइटर टू डाइजेस्ट ऑल्सो, लाइक तबीयत खराब होने से डॉक्टर मना कर देता है वो सब खाने। एग्जैक्टली। सो ऑल दिस वी नो, माने मेडिकली, स्पिरिचुअली, अध्यात्म की दृष्टि से सब हम जानते हैं, पर जानते हुए भी हम कर क्या रहे हैं? क्योंकि वैलिडेशन चाहते हैं। वो तो प्याज खा रहे, देखो उसको कितना गुस्सा आता है। अब प्याज नहीं खा रहे, देखो कितना गुस्सा आता है, और वो प्याज खाता है और देखो कितना शांत रहता है। हम कुत्ते को पालते हैं तो कुत्ता तो इतना मेरे को प्यार करता है, उससे ज्यादा प्यार मेरे को कोई करता है क्या? उसका परिणाम तुमको अभी मिलेगा कि बाद में जाके मिलेगा? बट भैया अगर जैसे अगर सोचेंगे कि डॉग या कोई भी दूसरा बीइंग, उसमें अगर अपने सोचते हैं कि सब भगवान अंश है। बिल्कुल सही बात है, सब तो भगवान अंश है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब में भगवान, सब भगवान के अंश हैं। तो तुम तो अभी लिविंग बीइंग में बात कर रहे हो, हम तो प्लांट्स में पहुंच गए। नॉनवेज में आर्ग्यूमेंट आता है ना कि नॉनवेज आप बोलते लिविंग बीइंग है, तो क्या प्लांट डेड बीइंग है क्या? हाँ, दिस आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज देयर। जो दिस आर्ग्यूमेंट इज देयर ना। सो व्हाट इज द आंसर? Today, every being on earth has a purpose of its own. So the purpose of plants is to be eaten. The plant can't do anything else. वो अचर है, वो जमीन में जमा हुआ है, बैठा हुआ है, तो उसका और दूसरा पर्पस क्या? वो कहीं चल के कहीं जा सकता है क्या? So the purpose of that being is to be eaten. The fulfillment of his life is in being eaten. It gives free fruit for us to eat, because you need food to survive. So there will be living beings which will provide for that requirement. आज सांप का क्या है? हम बोलते हैं वो सांप जहरीला है, उसमें जहर आया कहाँ से? आज वातावरण में जो जहर है उसको वो ग्रहण करता है। So that is the purpose of its existence. So every being has a purpose of the existence depending on the environment or depending on the time, age and time he is being born. So the question is mein. So non-veg and veg mein again is this. Today the animal is not, the purpose of the animal is not to be killed and eaten. So you're giving pain to that. You're not giving pain to the plant. But भैया you do give pain to the plant also, जो experiment plant को भी feelings there. So you're doing it for an experiment. And again, one is physical pain. Experiment से आप physical pain को पकड़ रहे हैं, उसके अंदर की state को आप पकड़ रहे हैं क्या? उसको चोट लग रही है कि उसको पता भी नहीं चल रहा है? ये आपको पता है क्या? तो लगती है, डंडा मार रहे हैं, मेरे को डंडा फील भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कोई इंस्ट्रूमेंट आपको बता सकता है क्या?
और इसको कितना एक्सपेरिमेंट में छोड़- बोलते हैं ना कि अगर एक प्लांट को आप गालियां दे रहे हैं तो वो मुरझा जाएगा, लेकिन एक प्लांट को अगर अच्छे से बात कर रहे हैं तो वो अच्छे से ग्रो होता है। मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल ठीक फीलिंग्स बात है है। उसमें भी। तो ये जो है आपका कॉन्शियसनेस उसको इफेक्ट कर रहा है। यू हैव द पावर ऑफ दैट, you have the power of that. The plant is blooming because it is liking the spiritual energy that you are imparting to it. That spiritual But energy it does is with not you. have energy. It has, of course. The plant, again, plant is gross. Spiritual energy is not absent in anything. Even a grain of sand has spiritual energy. The body is gross. The body is becoming grosser and grosser. A grain of sand also has Will have energy. Everything existing on the planet. everything existing on the planet. So it depends on the giver of how much energy it is being able to impart. That depends on your potential. Today, the people who have evolved their spiritual energy, they can bend metal or not. Nikki Bhaiya can do it. He can tie a knot in a spoon. Yeah. You and I can't do that. So that spiritual energy has evolved or not. आज जो हमारी जो सिद्धियां होती थी, अनिमा गरिमा जो होता था, you could reduce your body to the size of a mosquito. You could grow to a size of a mountain. Yeah. What are these? It's again your spiritual energy affecting your body, and you have full control of the spiritual energy. वही तो है. तो इसमें है कि अगर किसी को अफेक्ट नहीं होने दे रहे हैं तो that depends on your control. Today, if energy is left uncontrolled, unrestrained, that is dangerous, because energy can't control itself. To control energy, it needs a container. That container is the body. That is why प्रकृति को पुरुष की आवश्यकता है. प्रकृति can never be independent. सेठ जी का लेख है कि आज स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते. स्त्री प्रकृति है, शक्ति है. बचपन में पिता के उसके साथ है, शादी के बाद पति के जाने के बाद बेटे के, कोई नहीं है तो भाई के. आज प्रकृति को संग, यश, सहारा, आश्रय एक पुरुष का चाहिए ही चाहिए. अगर प्रकृति स्वतंत्र होगी तो वो नाश करेगी, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव ही नाश है. नाश मतलब अनकंट्रोल्ड है वो. माने नाश और उसको छोड़ दो, इट इज अनकंट्रोल्ड. तो कंट्रोल करने के लिए उसको पुरुष चाहिए, एक आधार चाहिए, एक अट्रैक्ट, एक सेंटर पॉइंट चाहिए. और शक्ति बहुत है उसमें. शक्ति उसी में है. शक्ति बहुत नहीं है उसमें. शक्ति बहुत नहीं है, वो ही शक्ति है, पूरी है. वही शक्ति है. इसमें एक और बात आपको बताते हैं, एक और बात बताते हैं. आज वो केवल शक्ति नहीं है, प्रकृति का पूरा ज्ञान उसमें है. अगर वो प्रकृति है, अगर वो शक्ति है, क्यों अगर माने क्या शक्ति है वो, तो प्रकृति का पूरा ज्ञान है कि नहीं उसमें. तो जिसमें पूरा ज्ञान है उसको क्या स्कूल भेजने की आवश्यकता है? उसको पढ़ाने की आवश्यकता है. पर उसका ज्ञान पूर्ण कब होता है? स्त्री का ज्ञान पूर्ण नहीं है. स्त्री तो एक स्त्री रूप में एक बच्चा ही पैदा हुआ है तो मूल में पुरुष. आज मूल में तो पुरुष ही है, पुरुष का ही तो बीज है वो. तो जो स्पिरिचुअल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअल एनर्जी किसमें है? प्रकृति में है कि पुरुष में है? पुरुष में. पर अब प्रकृति और स्त्री क्या मान रही है कि मैं पुरुष से कम कहां से हूं? सही है कि नहीं? तो कम और बेसी यहाँ क्या है? जो फिजिकल एनर्जी और ज्ञान है वो स्त्री में है. फिजिकल एनर्जी और ज्ञान दोनों स्त्री में है. परंतु जो स्पिरिचुअल ज्ञान है, फिजिकल ज्ञान या फिजिकल एनर्जी तो उसमें है ही नहीं. स्पिरिचुअल ज्ञान जो है वो पुरुष में है. इसलिए स्त्री को जड़ कहा गया और पुरुष को चेतन कहा गया. पर जहां पे रामायण में स्त्री को जड़ कहा गया है, वो तो हमें स्वीकार ही नहीं है. तुलसीदास जी बक रहे हैं, शूद्र पशु नारी सभी तारना के अधिकारी. कैसे लिख दिया तुलसीदास जी ने ये? तो तारना का अर्थ क्या है? सीख की, कंट्रोल की. क्योंकि उनको आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो अपनी शक्ति को ठीक दिशा में नहीं ले जा पाएंगे.
और आज के समय संसार में समय में जो हो रहा है यही तो कारण है कि हमने अपने को ज्ञान ही मान लिया। आज बच्ची है, उसका ज्ञान पूरा, स्त्री का ज्ञान कब पूरा होता है? ज्ञान अनुभव में जब आएगा तब है। तो शक्ति, जिसको हम शक्ति बोल रहे हैं, वो स्त्री नहीं है, वो लड़की नहीं है, वो कन्या नहीं है, वो माँ है। तो जब तक लड़की माँ नहीं बनती वो शक्ति रूपा नहीं होती। माँ बनने के बाद ही उसकी संज्ञा शक्ति बन सकती है। उसमें शक्ति उपार्जित तभी होगी जब वो माँ बनेगी। और माँ कब बनेगी? जब पुरुष से मिलेगी। बिल्कुल, पुरुष ही उसको माँ बना सकता है। पुरुष ही उसको माँ बना सकता है। इसलिए सेठ जी हरदम मना करते थे कि बहुत जन आते थे, अगर कोई लड़की आती है कि शादी नहीं करना चाहती, सेठ जी कभी भी हाँ नहीं करते। देवी भागवत में लिखा है कि जो ब्रह्म राक्षस हो गए हैं वो कलयुग में ब्राह्मणों के घर में स्त्री के रूप में जन्म लेंगे। तो अगर हम चेतेंगे नहीं तो यही परिणाम आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और चेत जाएंगे तो ये परिणाम आ नहीं सकता। देखिए कहां से कहां ले जाते हो। तत्व ज्ञान के लिए उसे कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता। तत्व ज्ञान के लिए मतलब यहाँ पे तत्व ज्ञान का भाव है जो स्पिरिचुअल ज्ञान है, पुरुष का ज्ञान। तत्व ज्ञान माने पुरुष का ज्ञान। प्रकृति का ज्ञान उसको चाहिए ही नहीं, प्रकृति का ज्ञान तो वो देगी, पर पुरुष का ज्ञान जो है उसके लिए कौन बाहर निकलेगा? किसको बाहर जाने की आवश्यकता है? पुरुष को जाने की आवश्यकता है। और प्रकृति को तो घर के अंदर रह के ही उसको, जैसे महाराज जी कहते हैं कि यार जो घरेलू जो कार्य, रसोई बनाना है, चक्की पीसना है, ये सबसे ही उसको ज्ञान हो जाएगा। अपने जो शारीरिक क्रियाएं करते हैं वो क्रिया करते समय ही करते करते ज्ञान का उपार्जन अपने आप होते रहता है, अनुभव होते रहता है। नारायण नारायण।